Hello, everybody. This is Satyam Jain, and you are listening to me at Understand UPSC. I welcome you back to the channel. And the agenda for this particular video, as promised, is a comprehensive note making solution. Why is it important? Because note making is important. Because we hear it from everybody around us. Whosoever is preparing, whosoever has cleared the exam, has not cleared the exam, any senior, any junior, any faculty for that matter. A consistent, constant thing is, bhai notes bana lo. Notes. But now, just listening to this is not important. What is important is that we get a solution about it. So we have a lot of questions regarding this. What are important notes? What do you mean by notes? Then, is there a difference between the notes of optionals and GS? How many types of notes are there? Somebody says that the note should be very comprehensive. Some people say that the note should be very short. So what is the difference between the two? Is there a difference between the notes of optionals and GS? Do we need to make some notes for essay and ethics? And such hundreds and thousands of questions. In this particular video, I'll try to give you a complete solution, a detailed solution, a complete solution to everything, to every query of yours regarding note making. Okay, so I will deal separately with optional, then with GS, and then with essay. We'll deal separately with each of these. Moreover, I'll tell you what is a comprehensive note and what is a final short note. So a comprehensive note is about what is the agenda for creating a comprehensive short note, comprehensive basic note about something. It is to create one single source for everything. कि भाई मान लो एक टॉपिक है, सपोज करो मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी है और उसमें एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल से नेचर ऑफ गॉड या नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल प्लेटो. तो मेरे पास एक कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए जो मेरे नोट्स हों, जो मेरा बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट हो, जिसे पढ़ के आफ्टर रीडिंग विच आई एम एबल टू से दैट ओके दिस इज माई एंटायर मटेरियल ऑन प्लेटो. आई डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दिस फॉर एनीथिंग एट ऑल. That is something that I refer to as a basic comprehensive note. Alright, now my point is that if, suppose for example, I have a basic comprehensive note of maybe 200 pages for one single paper of optional, कोई बड़ी बात नहीं है 200 pages के notes होना. Now my point is, how are you going to revise these 200 pages in a very short span of say 2 hours or say 1.5 hour? This is simply not possible, right? नहीं हो सकता रिवाइज, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. फॉर दैट यू नीड फाइनल शॉर्ट नोट्स, फॉर दैट यू नीड लास्ट मिनट रिविजन नोट्स. नाउ दीज आर हाईली पर्सनलाइज्ड बिकॉज यू विल राइट ओनली थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर. यू विल राइट थिंग्स दैट आर फॉर वैल्यू एडिशन. सिर्फ ऐसी बातें लिखोगे उसमें, तो ये बहुत ही पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं. सो आई विल टेक यू थ्रू अ कंप्लीट जर्नी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से एक बार अगर आपने बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लिए तो वो कैसे आपके पूरा सॉल्यूशन होता है टू एवरीथिंग. आपके क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे पेपर में, आपके PYQs भी वहीं से आ चुके हैं, आपकी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी उसके बाहर से नहीं आएंगे. एंड सिमिलरली द फाइनल शॉर्ट नोट्स आर वेरी 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 इफेक्टिव फॉर लास्ट मिनट रिविजन फॉर मार्क्स. राइट, जितना आप इनको याद करोगे, जितना आप इनको रट लोगे, उतना आपके मार्क्स में कन्वर्ट होता जाता है. I hope that is clear. So relevant timestamps have been put at various places. You can find them in the description. But I believe that any serious aspirant will go through this entire video to understand कि भाई किस तरीके से notes बनाए जाते हैं. What is the process of note making? All right. I hope that's clear. So I'll take you first of all through the notes of optional. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ a basic comprehensive note on optional. All right. So these are my notes. In this particular video, we have used notes from various sources. There are my personal notes, then there are notes of Rishabh Bhai, then there are notes of some of our students who have made sessions, who have made notes of SFG sessions, right? I'll show you those. Then there are some toppers and rankers notes, etc, etc. So we have taken notes from various sources, but trust me, this is going to be the most comprehensive video ever on note making. आपके सारे doubts दूर हो जाएंगे, आपका trust build हो जाएगा note making exercise पे. ठीक है, चलिए. So okay, this is माई पर्सनल नोट ऑन द टॉपिक ऑन द सेक्शन. सो मेरे फिलोसफी के पेपर 2 में 2 सेक्शंस होते हैं हर पेपर में. पेपर 1 में 2, पेपर 2 में 2. पेपर 2 में जो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो जो सेक्शन बी है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, उसके पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट है ये. ठीक है, दिस इज अ 116 पेज लॉन्ग हैंड रिटन नोट दैट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ रिलीजन. ईच एंड एवरीथिंग.
तो बिफोर कमिंग टू दिस आई लाइक टू शो यू समथिंग कि भाई इस बार के पेपर में ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स काम आए थे कि नहीं आए थे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अभी बना दिए 2 दिन पहले, आई मेड देम इन 2021, ठीक है 2021, नाउ इट्स 2023। तो 2 साल बाद भी आप देखोगे आई हैव जस्ट मार्क्ड फ्यू क्वेश्चंस टू शो यू कि किस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। बाकी क्वेश्चंस भी यहीं से हैं, लेकिन बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे सीधा सीधा दिख जाते हैं और मेरे को दिखाने भी थे, दैट इज वाई आई जस्ट टेकन देम। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामाइन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ न्याय फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। याद रखिएगा क्वेश्चन ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, न्याय का एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आर्ग्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। बात समझ में आ गई? आई नो दिस माइट नॉट बी फ्रॉम योर ऑप्शनल, बट सुन लीजिए आपको समझ में आएगा, एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। सो आई हैव जस्ट रिटन द पेज नंबर हियर, लेट्स गो टू पेज नंबर 29 एंड 30। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, हियर सो look at this, God in philosophy of न्याय वैशेषिक, this was the exact question। न्याय का गॉड के लिए जो आर्ग्यूमेंट है उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। न्याय के गॉड के आर्ग्यूमेंट ये रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड, ये सब कीवर्ड्स लिखे हैं देखो, ठीक है। ऑन दिस एंटायर पेज यू कैन फाइंड ऐसे 9 आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड, क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज हेडिंग है ये, यू कैन सी दिस, प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस गिवन बाय उदयन इन कुसुमांजलि, ही वाज अ थिंकर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, क्लियर। नाउ सी दिस क्रिटिसिज्म, इस पर्टिकुलर चीज का क्रिटिसिज्म, देन आई हैव half a note on the criticism and then the defense of न्याय वैशेषिक, again points on that and it's done। 20 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीटली फ्रॉम द नोट्स, कंप्लीटली, कोई तुक्का नहीं है ये, मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। नाउ लुक एट दिस, एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। ओके, पेज नंबर 44, लेट अस गो टू पेज नंबर 44। ओके, हियर पेज नंबर 44, ये देखिए कर्मा एंड रीबर्थ हेडिंग है, ऑलराइट, ये रीबर्थ का टॉपिक है, इसके अंदर कर्मा एंड रीबर्थ की हेडिंग है और उसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं, विच थ्योरीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट एंड एवरीथिंग, जो भी आपको किसी भी बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स में मिलेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि आप थोड़े अपने पूरे कंटेंट से 15 मार्कर लिख दो, बट माई पॉइंट इज दैट उसके लिए तो आंसर राइटिंग है, करेक्ट। बट अगर आपको पता है विच इज द वैल्यू एडिशन ऑफ योर नोट्स, व्हाट इज द बेसिक पॉइंट प्रीमाइस फ्रॉम वेयर योर क्वेश्चन इज कमिंग, यू विल बी एबल टू एड्रेस इट। समझ में आ रही है बात? लुक एट दिस, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू टिलिच। टिलिच एक इंसान का नाम है, उसके अकॉर्डिंग सिंबॉलिक नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है। लेट्स गो टू पेज 107। ओके, पेज 107। ओके, ठीक है, रीड द हेडिंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ सिंबॉलिक नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, पॉल टिलिच, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं दैट दिस इज अ कंप्लीट आंसर ओवर इट इंक्लूडिंग द क्रिटिसिज्म, देख सकते हैं आप, आपके सामने है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चंस आपने देखे, मैं और भी दिखा सकता हूँ, हर क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लुक एट दिस, क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेटोज प्रूफ्स फॉर द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, लेट्स गो टू पेज नंबर 37 एंड 38। सी दिस, ये देख लो आप, टॉपिक इज इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, द क्वेश्चन वाज अबाउट इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, द क्वेश्चन वाज अबाउट प्लेटोज प्रूफ्स। नाउ लुक एट दिस, आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न फिलोसफी, प्लेटोज मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट्स, 1 2 3 4, साथ में क्रिटिसिज्म भी पूछा था, क्रिटिकली एग्जामाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिटिसिज्म, देन प्लेटोज एपिस्टेमोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एंड अगेन क्रिटिसिज्म। तो यहीं पे ये आपको दिख रहा है कि इट कैन बी आंसर्ड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ नोट मेकिंग, क्लियर। तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा, स्टार्टिंग से लेके इवन 4th 5th पेज से लेके और बिल्कुल लास्ट तक। ये देखिए 116 पेजेस के नोट्स हैं, 116th पेज से भी क्वेश्चन है, देखिए मैं दिखाता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या था, इट वॉज अबाउट विटगेनस्टीन्स व्यू अबाउट द नॉन कॉग्निटिव नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज। सो विटगेनस्टीन एंड लैंग्वेज गेम, इसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, ये देखिए लैंग्वेज गेम एंड रिलीजियस लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू विटगेनस्टीन क्या क्या है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। सो what I want to tell you is that, मेरी बात समझिए, my point is that these are called basic comprehensive notes, basic comprehensive notes। ये आपका सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन होना चाहिए, अ सिंगल पॉइंट सोर्स। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक नंबर 3 पढ़ना है, सो यू आर सेइंग यार ये इस बुक से पढ़ना है, फिर इस टॉपर के नोट से पढ़ना है, फिर ये क्लास नोट से पढ़ना है, ये कोचिंग नोट से, नहीं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच।
अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। एक सोर्स, आपका एक सोर्स बनना चाहिए एक टॉपिक के लिए, then you can call that you have completed that particular topic of your optional in the most comprehensive manner possible. ओके अब मैं समझाता हूं कि मैंने बनाए कैसे थे। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जो हेडिंग लिखी है वही की वही पूरे के पूरे पेपर में टर्न हो रही है। सो दिस रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव हार्डवर्क। इसका क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बोलूंगा, रेदर हार्डवर्क तो चलो सभी कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने क्या किया, हमारे यहाँ पे 2 कोचिंग के नोट्स चलते हैं। I took up those coaching notes, say C1, C2. Then there is a book. I took up the book. Then there is a topper note. I took up that topper note. And then my class notes. So I took up my class notes. And I combined all these 5 to derive a 116-page note on the entire philosophy of religion, which, mind you, is of 150 marks in the paper. बात समझ में आ रही है? सो मैंने उठाया और जैसे मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल से T1, सो आई विल पिक अप माय क्लास नोट्स, आई विल सी कि इसमें क्या क्या दे रखा है, आई विल रीड इट, देन आई विल गो टू टॉपर्स नोट्स, देखूंगा कि इसमें अच्छा कुछ एक्स्ट्रा दिया है, उसको मार्क कर लूंगा, देन आई विल सी कि बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मार्क कर लिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मार्क कर लिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मार्क कर लिया, एंड देन लास्ट में कंबाइन करके इस हेडिंग के अंदर ले आया। मोर ऑफन देन नॉट यू विल सी कि चीज़ें ओवरलैप ही कर रही हैं। 80% चीज़ें सेम होती हैं हर सोर्स में। बस किया, इससे क्या होता है, एक तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हो, एक जो वो बाकी 20% है वो भी कवर हो जाता है, एंड देन यू हैव अ सिंगल सोर्स एज वेल। तो अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैं, ऋषभ भाई, हम हमेशा यही नोट्स पढ़ के जाते हैं, उनका भी ऑप्शनल फिलोसफी है, हम अपने सब मेंस में यही पढ़ के गए हैं, सिर्फ ये फिलोसफी ऑफ रिलीजन के नोट्स पढ़ के जाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक इन योर सिलेबस, इन योर ऑप्शनल सिलेबस। क्लियर? अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी क्वेश्चन विल नॉट कम आउट ऑफ दीज नोट्स, आ जाएगा, बट नाउ बिकॉज यू हैव डन सच अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, नोबडी विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो आपके नोट्स में नहीं है तो वो किसी के नोट्स में नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव दैट इन योर कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनीबडीज नोट्स। हैव दैट कॉन्फिडेंस। एंड मेरा पॉइंट वही है यार, यू विल गेट 9 + 5 14 questions. You have to just answer maybe say 11 out of these. राइट? आप स्टिल क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 3 क्वेश्चन तो आप अभी भी छोड़ सकते हो ना। सो अगर कुछ ऐसा बहुत ही अजीब आ भी गया क्वेश्चन तो यू कैन लीव इट इजली। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ गया कैसे बनाया गया है? सो यू हैव टू डू दिस फॉर योर ऑप्शनल। आपको अपने ऑप्शनल के लिए सेम एक्सरसाइज करनी है। नाउ माई पॉइंट कम्स टू द सेकंड पॉइंट। डज अ कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक नोट्स का जो सॉल्यूशन है, इज इट इनफ? अ बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट, इज इट लाइक ये बना दिया, डज इट मीन मार्क्स? नो, ऑब्वियसली इट डजंट, बिकॉज ये याद करना 116 पेजेस को अपने दिमाग में बैठाना इज नॉट ईजी। यू विल नीड मल्टीपल रिविजन्स फॉर दिस। मोर ओवर, वॉट यू विल नीड इज अ फाइनल शॉर्ट नोट. Without a final short note, you will not be able to revise it in say 30 minutes. भाई मैं इंसान हूं ना, मैं 30 मिनट्स में 116 पेजेस रिवाइज नहीं कर सकता हूं. I'll need to convert this into 25-30 pages and only, or maybe even shorter, and then I'll be able to revise it in within 30 minutes. So let me show you what is a short note. Okay, मैं आपको short notes दिखाता हूं. अब ये मैं आपको अलग अलग पार्ट ऑफ सिलेबस से दिखाऊंगा. For example, let's start with what we just read. So this is philosophy of religion. Okay, philosophy of religion आप देखोगे कितने पेजेस में है. एक, let me shrink it, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 pages and the entire philosophy of religion is combined into it. 8 pages. Now you can say that I've written 2 sides. So you can, sir has written, these are not my notes, these are Avinash sir's notes. He is a ranker this year from philosophy optional. So अगर 2 साइड भी मान के चलो तो 16 पेजेस. ठीक है, आपने थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लिया 20 पेजेस. नॉट मोर देन दिस. 20 पेजेस रिवाइज हो जाएंगे, 116 पेजेस तो रिवाइज नहीं होंगे. सो वंस यू आर डन विद योर 116 पेजेस का नोट्स, व्हाट यू नीड टू डू इज इन 120 पेजेस को, 116 पेजेस को, यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू 20%. हैव अ 20% रूल इन माइंड. 20% रूल का क्या मतलब है कि आप ये 116 पेजेस को कन्वर्ट कर दोगे इनटू 20%. मतलब अराउंड नियरली 22 से 25 पेजेस मैक्सिमम. दिस 20% फाइनल शॉर्ट नोट्स. नाउ अब बताओ ये 30 मिनट्स में रिवाइज हो जाएंगे बिकॉज यू हैव रेड देम टाइम एंड अगेन, यू हैव मार्क्ड देम टाइम एंड अगेन. सो अब इनको रिवाइज करना आसान है. आप देख सकते हैं इनके नोट्स को. ये देखिए, इन्होंने हर चीज़ को ऐसे
हेडिंग्स को सबको मार्क कर रखा है एंड इतने शॉर्ट में लिख रखा है, ही नोज। सो मैंने जब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये आपके पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, दीज आर फॉर योर ऑन रीडिंग। कभी ये मत सोचिए कि मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाता हूँ कि कल टॉपर बन जाऊंगा तो पीपल विल बी एबल टू सी दैट। डोंट थिंक इन इस लाइन पे, है ना। टॉपर बनने के बाद भला करिएगा लोगों का, पहले अपना भला कर लीजिए। फर्स्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स विच आर अंडरस्टैंडेबल टू यू, विच आर रीडेबल, विच आर एलिजिबल टू यू, अंडरस्टैंडेबल टू यू, जो आपको समझ में आ रहा है और सिर्फ आपको समझ में आए तो भी ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, ये बात समझ में आ गई है। सिमिलरली यू कैन लुक एट सम अदर नोट्स एज वेल। दीज आर फ्रॉम पेपर 1, दीज आर माई पेपर 1 नोट्स। ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं एंड दीज आर इन 25 पेजेस। 25 पेजेस में आई हैव कवर्ड द एंटायर पेपर 1। ऑलराइट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड स्ट्रोसन। ये मेरे पेपर 1 के सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक है। ओके, लास्ट टॉपिक, क्वाइन एंड स्ट्रोसन। नाउ सी दिस, क्वाइन एंड स्ट्रोसन। अब कितने पेज पे, एक पेज पे क्वाइन आ गया, एक पेज पे स्ट्रोसन आ गया। सो इन 2 पेजेस आई एम डन विद 1 टॉपिक। आई हैव टू डू सच 11 टॉपिक्स टू कवर द एंटायर सेक्शन। कितने पेजेस में आएगा? 22 पेजेस, राइट। नियरली वही बोल रहा हूँ, 22 से 25। सो यू कैन सी दैट 25 पेजेस में माई एंटायर पेपर 1 सेक्शन ए नोट्स आर कवर्ड। कुछ डिजिटल बनाए हैं, कुछ फिजिकल बनाए हैं, दैट डज नॉट मैटर। आधे डिजिटल है इसमें, आधे फिजिकल है। सो यू पिकअप एनी पेज। अब मैं आपको एक मैं बता सकता हूँ आपको, मैं टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कांट आप सबने पढ़ा है ना, इमैनुअल कांट आप सबने एथिक्स में पढ़ा होगा। सो सी, आपके लिए कितना आसान है ये, रीड इट विद मी। इमैनुअल कांट is known for his critical philosophy, which means that he has synthesized the conflicting epistemologies of rationalists and empiricists into a universal epistemological theory. Clear? सिर्फ मुझे पता है ना इन चीज़ों का क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा है। Kant said that knowledge proper, ये क्या लिखा है मैंने, knowledge proper is synthetic a priori। इसमें की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिवर्सल होता है, सर्टेन होता है, फैक्चुअल होता है। देन एनालिटिक का क्या मतलब है, पी इन एस का क्या मतलब है, प्रेडिकेट इन सब्जेक्ट। सो आई हैव शॉर्टेंड इट लाइक इन अ सिंगल पेज और अ 1.5 पेज, यू कैन से 2 पेजेस मान लो। तो वही एक टॉपिक, कांट इज एन एंटायर टॉपिक इन माई सिलेबस, 2 पेजेस में कवर हो गया है। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ शॉर्ट नोट्स आर मेड। अब मेरे इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो क्लास नोट्स हैं, सिर्फ क्लास नोट्स ऐसे 300 पेजेस के हैं। तो 300 पेजेस थोड़ी रिवाइज होते हैं यार, 300 यू कैन नॉट एवर डू दैट, बट 25 पेजेस कैन बी रिवाइज इन 25 to 30 मिनट्स, राइट। तो इसी में आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रिवाइज करते टाइम मार्क भी कर रखा है कि मुझे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, विच वर्ड्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। करेक्ट, आई होप दैट्स क्लियर। जैसे अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो मैंने लिख भी रखा है कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। ये सब वो हैं जो वैल्यू एडिशंस बाद में हो रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बन गए लेकिन अभी आपको कुछ और पता चला बाद में, तो यू कैन वैल्यू ऐड। आई होप दैट्स दिस थिंग इज क्लियर। ऐसे ही आप देख सकते हैं, इफ़ यू लुक एट, ये अगेन सर के नोट्स हैं एंड ही हैज़ अगेन डन दैट फॉर अ सिमिलर पेपर। सो 40 पेजेस में सर ने एंटायर फिलोसफी का पेपर 1 कन्वर्ट किया है। एंटायर फिलोसफी का पेपर 1 सर ने कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। कितने टॉपिक्स थे फिलोसफी के पेपर 1 में? 20। ईच टॉपिक 2 पेजेस, 40 pages. Now these 40 pages can be easily revised in an hour. Easily revised in an hour, क्योंकि इतनी बार आप पढ़ चुके हैं इनको, राइट। अब देख सकते हैं कितनी जगह मार्क्ड है, कितनी जगह चीज़ें हैं। करेक्ट। आई होप दिस इज विजिबल टू यू एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शनल के नोट्स बनाने हैं। क्लियर? ऐसे आप देख सकते हैं कि ये दीज आर माई नोट्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स के लिए बनाए हैं। करेक्ट। तो आई होप ये मेरे पूरा समझाने के बाद इन द लास्ट 15 मिनट्स और व्हाटसोएवर 20 मिनट्स, आई होप दिस थिंग इज़ प्रिटी क्लियर कि आपको ऑप्शनल के जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। देयर विल बी अ सेट ऑफ बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, दीज विल बी डिराइव फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, है ना। आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टॉपिक, बस ये रिमेंबर दिस ऑब्जेक्टिव दैट टॉपिक 1 वेयर डू आई हैव टू रीड टॉपिक 1 फ्रॉम। सर ये 20 पेजेस हैं टॉपिक 1 पढ़ने के, इन 20 पेजेस से आपको टॉपिक 1 पढ़ना है। एंड देन द लास्ट फाइनल लेयर इज, ये लास्ट फाइनल लेयर पे आप एक दिन में नहीं पहुंचते हो, यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ लास्ट फाइनल नोट्स में लिखनी है और कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है। यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनटू द फाइनल शॉर्ट नोट्स एंड व्हाट डजंट। एंड देन दीज 20 पेजेस विल बी कन्वर्ट टू से 2 पेजेस और वट एवर।
3 पेजेस 4 पेजेस, दैट्स ओके, दैट वेरीज. कोई टॉपिक बड़ा हो सकता है तो उसके 4 पेजेस में बन सकते हैं, कोई टॉपिक छोटा है उसके 2 पेजेस में बन जाएंगे, 1 पेज में बन जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ, this is what your target should be. So I'll give you a target. Your target is complete your basic comprehensive notes of your optional paper 1 and optional paper 2 by the end of December. If you do this, short notes, final notes, ये सब आप prelims के बाद बना सकते हैं. But make sure that you are done with this particular thing. ये अगर आपने कर लिया, your life will be sorted. You will be sorted. ये आपका टारगेट है. इसका मतलब 2 चीजें होंगी. पहली बात क्या कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, एंड सेकंड विल बी दैट यू हैव कवर्ड इट कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड थर्ड विल बी दैट नाउ यू हैव वन सोर्स फॉर वन टॉपिक वन सोर्स. Okay, if you are taking this pledge, so this is a 75-day challenge, a 75-day pledge of note making. If you are taking it, let me know in the comment section that you will cover the basic comprehensive notes of your optional paper 1 and optional paper 2 by the end of December. If you are taking this 75-day challenge, 75-day challenge means the end of December. आज 15 तारीख या ऐसे कोई भी डेट है, आपको end of December तक ही complete करना है. I hope this is clear to everybody. चलें, लेट्स मूव अहेड. ये हो गई ऑप्शनल की बात. लेट्स कम टू जीएस नाउ. सो मैं आपको एक एक करके GS1, GS2, GS3 से कुछ सेक्शंस दिखाता चलता हूँ. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज अ आर्ट एंड कल्चर नोट. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं, एंड इफ यू लुक एट इट, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, दीज आर 92 पेजेस वर्थ ऑफ नोट्स, बट दे कवर एवरीथिंग, है ना. इसमें सब कुछ है. इसके बाहर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आएगा तो किसी को नहीं आता होगा. इसमें आप कोई भी टॉपिक बोलो, यू विल फाइंड इट. यू विल फाइंड पेंटिंग्स, यू विल फाइंड स्कूल्स, यू विल फाइंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, यू विल फाइंड द डायग्राम्स दैट आर नेसेसरी, एवरीथिंग. ये देखो, नगरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, सब कुछ आपको मिल जाएगा. फिर मिडिवल इंडिया भी इसमें ही आ गया. मिडिवल इंडिया का क्या आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, एवरीथिंग यू कैन सी, मुगल आर्किटेक्चर. सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दीज पर्टिकुलर नोट्स. क्लियर. निर्गुण, सगुण, भक्ति मूवमेंट, देन सम अदर थिंग्स, उसका क्या, what is the crux of it, what is the analytical angle to these things, सब कुछ, everything is covered in these notes. Correct. These were for art and culture. Similarly now here it is modern India, modern history. So इस 92 pages में, in 92 pages में we have covered art and culture and we have covered modern history as well. Now when we need to convert them into very short notes या final notes, तो ये we will be able to convert again. वही रूल लगाओ 20% के आसपास का. So 92 पेजेस को हम मे बी ऐसे 5, 6 या एट मैक्स में से 8 पेजेस, इतने में इसको कन्वर्ट कर लो. ठीक है. ये कैसे होगा? When you will read them again and again, तो आपको समझ में आ जाएगा कि what needs to be put in the final short notes. वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, I'll show you live in the next video that will be coming up on Saturday. On 21st, you will have a video. 21st Saturday, you will have a video where I'll show you live how to convert current affairs into notes and short notes for UPSC CSE. A comprehensive current affair coverage video related to every doubt that you have related to current affairs. कैसे मैगजीन पढ़नी है, 365, ये वो, मेंस की 365, पीटी की 365, इसका कोर्स, उसका कोर्स, उस सर का कोर्स, एवरीथिंग, है ना. सब कुछ कवर करेंगे हम इसमें. एंड आई ऑल्सो शो यू कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर को नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सो दैट यू आर नॉट जस्ट एबल टू रिवाइज बट ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन. दैट इज द अल्टीमेट एंड. ठीक है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो जैसे बहुत मतलब आपको कितना शॉर्ट में, इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत डिटेल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द एंग्लो मैसूर वॉर. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ईयर विद हैदर वॉन, विच ट्रीटी वॉज साइंड एंड हु वॉज ऑन द अपोजिट साइड. डन. द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ईयर, किसने लड़ा, किसके अगेंस्ट लड़ा, दूसरी साइड से कौन थे, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, थर्ड, फोर्थ. डन. नाउ माई पॉइंट इज दैट आफ्टर रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री मल्टीपल टाइम्स यू नो कि इस पर्टिकुलर बैटल में अंदर क्या हुआ था. फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज द ईयर, यू नीड टू रिमेंबर द साइड्स, यू नीड टू रिमेंबर द ट्रीटीज, द नेम्स. वो नोट्स में आ गया आपके. इसमें इस बैटल का कहीं भी डिटेल नहीं दे रखा है. ऐसे आप कोई भी पेज खोल लो, यू विल सी द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट द पीजेंट रिवोल्ट्स. इसके क्या कॉजेज हैं मेंशन कर दिए, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, मेंशन हो गई. अलग अलग फेजेस में कैसे चला, वेरी शॉर्ट में, है ना, इन वेरी शॉर्ट, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. नो कॉन्टिन्यूटी, लोकलाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड. अब इसको हर एक पॉइंट को आप डिटेल में कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्वेश्चन कम्स अपॉन पीजेंट मूवमेंट्स, डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ पीजेंट मूवमेंट. नाउ आई नो दैट देयर आर 4 फेजेस, करेक्ट. एंड इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है वो मुझे पता है.
तो आई कैन ईजिली लेट अ 15 मार्कर इवन इफ इट कम्स इन द 15 मार्कर, इफ इट कम्स इन द 10 मार्कर तब तो यहीं के आंसर लिखा हुआ है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स ईजियर. करेक्ट. ऐसे ही यू कैन लुक एट द 1857 कॉजेज. तो हर चीज़ में ऐसे ही है. These notes are of a friend of mine, and you can see that very nicely she has covered. For example, look at this. This is a map of India. ठीक है, मैंने मेंशन भी किया है कि जैसे इस तरीके से दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैप. सो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा दिखा रखा है एक मैप के अंदर कि किस तरीके से 1857 का बैटल कहाँ किसने लड़ा. सो लोकेशन एंड द नेम ऑफ द पर्सन. अब आप जब ये मैप के फॉर्म में ही पढ़ोगे तो आप एग्जाम में ये भूलोगे नहीं कि यार ये क्वेश्चन है तो मैप बनाना है. राइट. दिस इज हाउ दिस takes place. This is how it will happen. I hope you are clear with this thing. Clear? Similarly, look at Indian society. Indian society के भी same तरीके के आपको notes दिखेंगे. Nothing different. You can see the flow charts and the diagrams also that you have to use. What is university, unity and diversity? What is diversity and unity? हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखती जाएगी. Clear? तो ये इसी तरीके से आपको कवर करना है कि सोशोलॉजिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग चीज़ों की, फंक्शंस क्या होते हैं सोसाइटी के, किन हेडिंग्स में आपको तोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्वेश्चन कम्स अपॉन द चेंजिंग इंडियन फैमिली सिस्टम, जैसे इस साल क्या क्वेश्चन आया था एक कि भाई द सेक्रेमेंटल नेचर ऑफ मैरिज इज चेंजिंग, मैरिज इज अ सेक्रेमेंट इज चेंजिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था. नाउ इफ यू नो दैट एनी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन द चेंज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्ट्रक्चरल चेंज एंड फंक्शनल चेंज, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज में तोड़ सकते हो. नाउ यू विल बी एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स एंड दिस आंसर विल लुक गुड एज वेल. ये फ़ायदा होता है. एंड इसके बियॉन्ड तो कुछ जाना ही नहीं आपको. दिस इज़ इनफ फॉर कवरिंग. सो दिस इज़ हाउ आई होप यू आर क्लियर विद द फैक्ट कि किस तरीके से आपको चीज़ों के नोट्स बनाने हैं. आपको टॉपिक उठाने हैं, अपनी सोर्सेज उठाने हैं, एंड यू जस्ट नीड टू नोट देम डाउन. यू जस्ट नीड टू ब्रिंग थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. है ना. रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में कैसी है, हिंदूज कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ का थोड़ा बहुत लिख दिया. है ना. अगर कोई ऐसी कोट है वेरिटेबल टावर ऑफ बेबल, तो ऐसे करके आपने लिख दिया कि इंडिया को इस तरीके से बोलते हैं लैंग्वेज के नाम पे. AR देसाई ने क्या बोला है, इंडिया रेस्पेक्ट्स अ स्पेक्टेकल ऑफ म्यूजियम, इंडिया रिप्रेजेंट्स अ स्पेक्टेकल ऑफ म्यूजियम ऑफ टंग्स. सो ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो अगर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है तो. बट ये कब, अगर आपके पास होगा तभी ना. अगर आप, मैं आई विल टेल यू अ वेरी नॉर्मल थिंग. जैसे पहले मेंस में आई डिडंट हैव नोट्स. सो क्या होता था कि पेपर के पहले जब रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए आई हैड टू कैरी बुकलेट्स. अब ये बुकलेट्स आप बिल्कुल रिवाइज नहीं कर सकते यार. एंड इस पर्टिकुलर मीन्स में भी आई कुड सी पीपल इन फ्रंट ऑफ मी डूइंग द सेम थिंग. तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये तो इशू है ना, दैट यू आर ट्राइंग टू गो थ्रू 500 पेजेस ऑफ GS1, अलग अलग बुकलेट्स हैं. दिस कैन नॉट टेक प्लेस. यू हैव टू हैव ऐसे कि पूरा का पूरा GS1 इन 60 पेजेस में बी, फॉर एग्जाम्पल. नाउ दीज 60 पेजेस कैन बी रिवाइज्ड ईजिली. ऑलराइट. नाउ लेट्स लुक एट पॉलिटी. ये ऋषभ भाई के नोट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल से फंडामेंटल राइट्स. नाउ पीपल से यार कि किस तरीके से नोट्स निकालें. फंडामेंटल राइट्स है. आई विल शो यू फंडामेंटल राइट्स 1 पेज, 2 पेज, 3 पेजेस एंड डन. 4, 3.5 पेजेस में पूरे फंडामेंटल राइट्स का जो इतना बड़ा चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, ही हैज टेकन इट डाउन. क्लियर. तो इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं. नाउ दिस इज फॉर प्रीलिम्स एज वेल. ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा. एनी क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल राइट, देखो, इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इट इज़ आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द फंडामेंटल राइट एस्टेब्लिशेज अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन या नॉट ऑफ ह्यूमन. जो भी क्यों हो रहा है ये, तो इससे क्या बन रहा है, इससे इंट्रोडक्शन बन रहा है आपके आंसर का. नाउ यू हैव ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स दैट यू नीड टू मेंशन. ये देखो, ओनली सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, तो बहुत शॉर्ट में सब आ गया. अभी यादों में रहते ही है. 14-15 में क्या है, नीचे लिखा भी है. सो यू जस्ट नीड टू मेक नोट्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल टू यू, जो आपको समझ में आ रहा है. जैसे देखो, अभी ये एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, Article 361 and 361A. 361 deals with president and governor in criminal cases and then in civil cases. Then Article 361A talks about other things. Article 105 parliamentary privileges. 194 यही privileges state legislature में. 31C exception कैसे है, 39BC exception कैसे है, right? फॉरेन एम्बेसडर्स को क्या एक्सेप्शन मिला है. तो इतने छोटे से बॉक्स में यू एबल टू कवर ऑल द एक्सेप्शंस दैट आर अंडर राइट टू क्वालिटी. अब फॉर एग्जांपल राइट टू क्वालिटी पे क्वेश्चन ही आ जाए कल को, आ सकता है, बिल्कुल सिलेबस में है, आपके मेंस में आ सकता है राइट टू क्वालिटी पे क्वेश्चन. एंड इफ आर राइटिंग दिस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स अ वेरियस एक्सेप्शंस, यू आर सॉर्टेड. इतना सा बॉक्स आपको याद करना है, यू आर सॉर्टेड विद दिस. You cannot sit and revise the Lakshmikant, right? You cannot sit and revise 40-50 pages of Lakshmikant to revise fundamental rights, but you definitely can revise and remember 3 pages.
I hope this thing makes sense. Now look at these notes. These are the notes for GS2 का important articles, right? Then important Supreme Court cases, then important committees, important data, all of that in just 8 pages. Everything that you need to value add is in these 8 pages. या विनाश सर के हैं, in these 8 pages he has covered everything. The important articles, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इतने आर्टिकल्स हैं, उसमें से 2 पेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो कवर हो गए. उसमें से भी ये वाला जो एक बॉक्स है पूरा का पूरा डीपीएसपी का है, ये वाला जो बॉक्स है आपका फंडामेंटल राइट्स का मिल जाएगा इधर, एंड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट जस्ट इन 2 पेजेस. नाउ व्हेन यू कंटिन्यूसली सी इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्यों नहीं याद रहेगा यार, क्यों नहीं दिमाग में जाएगा, बिल्कुल जाएगा. बट अभी आपके पास कोई सोर्स है ही नहीं ना ऐसा. इफ यू डू नॉट हैव अ सोर्स यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. व्हेन यू हैव अ सोर्स यू विल बी एबल टू डू इट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सो ये मेहनत है. लोग बोलते हैं कि कैसे कोड करें आर्टिकल्स, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, एंड देन आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन सीखनी पड़ेगी. यू कैन सी अभी ऋषभ भाई इज टेकिंग GS2 के लेक्चर्स वेयर ही इज टेलिंग कि कैसे आपको वैल्यू ऐड करना है हर क्वेश्चन में. तो आपको सबसे पहली प्रोसेस समझो यार, अंडरस्टैंड द प्रोसेस. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न, द सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू implement, and the third thing is that you need to execute. I am not lying, but this is the 3-stage lie process. You need to learn. For learning you need to read and make notes. For implementation you need to answer right, you need to watch lectures, you need to understand how to implement, and that at last you need to execute it rightly on the day of the examination. Not lying about it, but this is the lie principle that you need to follow. तो अगर आपके पास सोर्स ही नहीं, आपने कभी ये मेहनत की नहीं, तो आप कैसे उसको लर्न करोगे. देन सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट केसेस, जैसे सर ने ऐसे 30 केसेस कवर किए हैं. इफ यू विल वॉच माई GS2 लेक्चर्स दैट आई हैव टेकन इन SFG मेंस दिस ईयर, आई हैव कवर्ड नियरली 60 सुप्रीम कोर्ट केसेस. तो अगर आपने उसके 60 केसेस के नोट्स बना लिए हैं, अगर आपने वो 60 केसेस अभी दिखाऊंगा भी मैं, फॉर एग्जांपल से यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया, तो वी हैव केशवानंद भारती, वी हैव गोलकनाथ जजमेंट, देन वी हैव द वमन राव जजमेंट, वी हैव द इंदिरा गांधी जजमेंट. देन इफ 9th शेड्यूल का क्वेश्चन आया, वी हैव द L. चंद्र कुमार केस. Then, for example, if a question comes on ordinance, we have the Wadhwa case, we have the Krishna Kumar case, the R.C. Cooper case, the A.K. Roy case. Repromulgation किस में हुआ था? In the Krishna Kumar case. वो यहाँ पे लिख दिया है. Then similarly, if you come to right of freedom of speech, you have the Shreya Singhal case, you have the Anuradha Bhasin case, the Romesh Thapar case. In Anuradha Bhasin case, you have the doctrine of proportionality, LA, LR, RN के principles. Anybody who has gone through my lectures will be able to understand these things. तो आपको articles मैंने याद कराए हैं उसमें जितने रेलेवेंट हैं, आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट केसेस याद कराए हैं. नाउ माय पॉइंट इज, अब आपको इसके बाद की मेहनत तो आपकी है ना, दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड रिमेंबर देम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. अभी कवरेज कर लो, अभी सीख लो, रट बाद में लेना, बट सीख तो लो अभी. लर्न इट नाउ, अंडरस्टैंड इट नाउ, एंड बाद में रिमेंबर इट, रोट लर्न इट. सिमिलरली यू कैन हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट डेटा. 7-8 पेजेस में मैक्सिमम पूरा का पूरा GS2 का वैल्यू एडिशन कवर हो गया है. आई होप यू गेट इट. ये मेरे 365 के नोट्स हैं जो मैंने 365 के लेक्चर्स लिए थे, मेड बाय स्टूडेंट ऑफ SFG मेंस 2023. आर्टिकल्स जहाँ रिक्वायर्ड हैं, हेट स्पीच के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो आपको ओपन अप करने हैं, इसके क्या आप निमोनिक्स बना सकते हैं. जैसे ये एक निमोनिक बना लिया है कि भाईचारा में ही भलाई है ना. हेट स्पीच करोगे तो भाईचारा नहीं रहेगा, लेकिन भाईचारा में ही भलाई है. सो नाउ यू कैन रिमेंबर द केसेज. भाई इज प्रवीण भाई थोगड़िया, भलाई इज प्रवासी भलाई संगठन, करेक्ट. देन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो कौन सी 2 कमिटीज? विश्वनाथन कमिटी, बेस बरुआ कमिटी, यूवी रेज, बी से बेस बरुआ. तो ऐसे यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन. ये मेहनत लगती है टू रिमेंबर दीज थिंग्स, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन. तो वही मैं बोल रहा हूं, लर्न, इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट. आर्टिकल्स, केसेस, इंदिरा सानी, नागराज जर्नल, जनहित अभियान, राम सिंह केस. बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखवाया भी, देखो है ना, यूज इन सोसाइटी, कास्ट, कहीं भी आएगा यूज द राम सिंह केस. ये है इंप्लीमेंटेशन. ऐसे इंप्लीमेंटेशन सीखते हैं. मैंने खुद अपने एक आंसर में यूज किया था इस बार इस केस को. क्लियर? आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि आपको क्यों नोट्स मेकिंग करनी है, कैसे करनी है. जो आपको लेक्चर्स दिए गए थे 365 के, दे आर इनफ टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. इनफ, बट यू नीड टू गो थ्रू देम ना. वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा. सिमिलरली इफ यू गो थ्रू IR, ये मेरे वही जो मैंने नोट्स बनवाए हैं IR के, अपने लेक्चर्स के 365 से जो नोट्स बनवाए हैं वो हैं. सो इसमें देखो सब कुछ कवर्ड है, डेटा कवर्ड है, देन ऐसे जो भी कीवर्ड्स आने हैं वो कवर्ड है. एंड इनके देखो लास्ट में दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट देम टू शॉर्ट नोट्स. ये ऋषभ भाई के शॉर्ट नोट्स हैं. जैसे इंडिया चाइना है, तो इंडिया चाइना में क्या क्या कीवर्ड हैं, ही हैज़ रिटन इट इन वेरी शॉर्ट. जितने भी हैं देखो ऐसे आधे पेज में पूरा का पूरा कवर कर लिया इन जस्ट हाफ पेज.
सो नाउ वो सबसे बेटर समझ सकते हैं इसको, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, न्यू पंचशील, मलक्का डायलमा, चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग अदर नेशंस, द तिब्बत इशू, द टू फ्रंट वॉर दैट वी आर फाइटिंग, द दौलत बेग ओल्दी का इशू, देन द गलवान वैली, देन ऐसे स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी क्या है, इनफॉर्मल समिट हुआ था वुहान में, मल्लापुरम में, इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस है, करेक्ट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, द इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ चाइना पाकिस्तान, CPEC अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द हिमालयन इशूज़, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स फिर लास्ट में फेच आउट करने हैं। दैट यूर अगेन योर एंटायर GS2 इज कन्वर्टेड इनटू 60 पेजेस। द डे यू आर एबल टू डू दिस, आपका हो गया काम। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज आर GS2 के नोट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू 30 पेजेस। इसमें सब कुछ है, दीज आर द शॉर्टेस्ट नोट्स दैट आई हैव सीन फॉर GS2 एंड इसमें सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट इंडिया चाइना इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इंडिया चाइना देखते हैं इसमें, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें वहीं कवर्ड होंगी, कोई बहुत डिफरेंट नहीं होता है। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू put in efforts to make these things. The day you start putting efforts to make these things is done. All right, I hope this thing is particularly clear to you. Yeah, so look at this, India China, सब चीज़ें वही हैं जो आपको पता है, बस आपने क्या किया कि आपने इसको बहुत शॉर्ट में लिख लिया। कितनी शॉर्ट में? हाफ पेज, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग टिल हेयर, इंक्लूडिंग द ग्राफ एंड ऑल, इंक्लूडिंग द ग्राफ एंड ऑल। ओके, याद रखिए इस चीज़ को। तो जस्ट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ कहाँ कॉम्पिटिशन है, कहाँ कहाँ कोऑपरेशन है। सिंपल, 3 लेयर का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको आपके आंसर के लिए। यू हैव अ 3 लेयर स्ट्रक्चर, यू इंप्लीमेंट इट, यू गेट योर मार्क्स। अब इसमें से हर पॉइंट एक पॉइंट है अपने आप में, हर छोटा सा वर्ड एक पॉइंट है। LAC बॉर्डर पूरा पॉइंट बन सकता है, एक्साई चीन पूरा पॉइंट, मैकमोहन लाइन, गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट, टू फ्रंट वॉर, ये लिखा था ऋषभ भाई ने भी देखा हमने, गलवान वैली उन्होंने लिखा हुआ था, CPC लिखा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सलामी स्लाइसिंग, ये सब चीज़ें हमारी सेम मिलेंगी आपको। द पॉइंट इज दैट एवरीबडी डज दिस, सो यू ऑल्सो नीड टू डू इट। ये सबसे पहली बार की में नहीं करना है, पहले लेक्चर सुनिए, उसके अच्छे से डिटेल नोट्स बनाइए, देन कन्वर्ट देम इनटू शॉर्ट नोट्स बाय वेरियस रिविजन्स। शॉर्ट नोट्स पे अभी भले फोकस मत करिए, अभी बनाते रहिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, करते रहिए चीज़ें, एंड देन व्हेन यू आर डन विद योर प्रीलिम्स स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट बाय रिवाइजिंग इट। वो कैसे करना है, ठीक है, तब बता देंगे आराम से। सिमिलरली यू कैन सी GS3, दिस इज अ नोट ऑफ एन एस्पायरेंट ऑफ SFG, उन्होंने शी वॉज वेरी काइंड टू शेयर इट। तो इसमें आप देखोगे कि इन 70-80 पेजेस कॉम्प्रिहेंसिवली इंडियन सिक्योरिटी हैज़ बीन कवर्ड, बट नाउ अगेन ये तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया, बेसिक नोट्स हो गए, बट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू शॉर्ट नोट्स। तो ये देखो, नाउ सिक्योरिटी इज कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट नोट्स। कितने पेजेस? 2, 3, 4, 5, 6, 7। डिजास्टर शुरू हो गया। इन 6.5 पेजेस एंटायर सिक्योरिटी इज कवर्ड। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू शॉर्ट नोट्स। बात समझ में आई? दीज वर हाउ मेनी पेजेस? 80 पेजेस, 79-80 पेजेस। एंड वही जो मैं बोल रहा था आपको कि 80 पेजेस का आप 8 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, या 10 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, या 12 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, दैट्स कंप्लीटली ओके। सर ने तो 7.5 पेजेस में कर रखा है। So this is how you do it and see how clear they are. You can like start reading anything. For example, say radicalization and militancy है, अब मैं इसमें से कहीं भी उठा के करूँगा तो I'll be able to read. For example, look at this. What are the measures? What are the measures that we need to take? Counter radical division of militants, de-radicalization program, capacity building to deal with cyberspace activities, 3 prongs counseling, 1 family, 1 clergy and 1 professional counselors, and last community rehabilitation. Then mission Pehal, Sri Lankan model of 6+1 tenets, and then Operation Pigeon by Kerala Police. ऐसे ऐसे करके the entire measures have been covered. बात समझ में आई? This is how you make notes out of things. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एनवायरनमेंट के नोट्स बनवाए थे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट कुछ चीज़ें हमेशा लिख के रख लो दैट यू विल यूज एवरीवेयर। द पंचामृत, इंडिया का एमिशन, द रिपोर्ट्स के नाम, द ग्रीन शिफ्ट रिपोर्ट, द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, द PM 10 पॉइंट एजेंडा, द एनुअल स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब क्या है कि एनवायरनमेंट से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं या मे बी 3 क्वेश्चन आने हैं। अगर आपने 4-5 रिपोर्ट्स याद कर लिया, यू विल बी एटलीस्ट एबल टू यूज देम इन 2 आउट ऑफ 3 आंसर्स। आपका हो गया वैल्यू एडिशन। ऐसे कुछ डेटा याद करा दिया, SDGs याद करा दिए, SDGs के निमोनिक बनवा दिए, ये SDGs का निमोनिक बना दिया, एवरीबडी इन SFG न्यू दिस, दे वर एबल टू यूज इट इन देयर एग्जामिनेशन, कंक्लूजन्स में, इंट्रोडक्शंस में, हर जगह यूज हो जाता है फिर ये, राइट। इन 10 पेजेस स्कीम्स which are the schemes that government is using. In 10 pages the entire environment current affairs which was relevant is covered, and that is how you can go about it. अब देखो, the point is that maybe the questions will not directly come from your notes, which is very rare in GS.
कि आपने जो लिखा है उसी में से आ गया, ऑप्शनल में आपने देखा कैसे हुआ, जीएस में वो थोड़ा रेयर होता है. बट माई पॉइंट इज व्हेन यू हैव इन्फॉर्मेशन विद यू, है ना, लर्निंग का फेज हो गया है, इंप्लीमेंटेशन सीख लिया है कि भाई मुझे अपने कंटेंट को किस तरीके से आंसर में कन्वर्ट करना है. दिस इज व्हाट इंप्लीमेंटेशन इज, दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग इन एसएफजी. करेक्ट. एंड द लास्ट इज एग्जीक्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे. इसके बिना तो कुछ है ही नहीं. सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आई होप आई एम एबल टू रिजॉल्व योर डाउट्स रिगार्डिंग जीएस की आंसर, जीएस के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. देन इफ विल कम टू एसे. अच्छा हाँ, GS4 की भी एक चीज़ दिखाता हूँ. GS4 के नोट्स मैंने पहले भी बताया, आपको भेजे भी हैं. आई हैव सेंट GS4 नोट्स एज वेल. बट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू शो यू दिस. लुक एट दिस. दिस वॉज माई GS4 के नोट्स कह लीजिए, या ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. एटीट्यूड का टॉपिक, एटीट्यूड क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव एटीट्यूड में क्या चेंजेस क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, पॉजिटिव कैसे चेंज होता है. देन what is a moral attitude, what is a bureaucratic attitude, how do you change a bureaucratic attitude, what is the meaning of persuasion, ये सब एक टॉपिक में कवर हो गया. सो नाउ यू आर एबल टू सी कि इस इतने में, इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स आई हैव कवर्ड द एंटायर एटीट्यूड का चैप्टर दैट नीडेड टू बी कवर्ड. कीवर्ड्स लिख दिए बस. सिमिलरली व्हेन यू विल कम हेयर यू विल सी द नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल से एप्टीट्यूड का चैप्टर है, कवर्ड अगेन इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट. सो ये एक पेज है ये. एंड दिस कुछ भी खोल के देख लोगे, कहीं से भी उठा के देख लोगे, टॉपिक दिख जाएगा कोई ना कोई. जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था इस बार, एथोस, एथिक्स, इक्विटी, एफिशिएंसी. राइट. तो इसके अंदर क्या कीवर्ड्स आएंगे, एंड मैंने यूज़ किया एक्चुअल एग्जामिनेशन में. ये नेशनल कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी से लिया हुआ है मैंने, एक्चुअली एज इट इज़ यूज़ किया है. देन यू कैन सी एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, ये देखो कवर्ड. एथिकल कंसर्न्स, ऐसे ही IR का देख लो, ये देखो. This was the exact question that came this year. Issues of international aid. Exact question. Pick up question number 2 of this year's ethics paper. International funding, international aid के ethical issues. उसी theme के around question है. तो ये already लिखे हुए थे. What are the concerns? What are the issues? इतने keywords आपके लिए बहुत होते हैं 2 pages लिखने में. इसके बाद आपको statement बनाना है, example डालना है. So this is how I created a 1-pager note. 1-pager नहीं बोलूँगा इसको, that will be lying. But this is how, and ये ऋषभ भाई और मैं बैठे एंड वी ब्रेन स्टॉर्म्ड द एंटायर एथिक्स के नोट्स एंड वी केप्ट ऑन कन्वर्टिंग देम. इवन इफ आई वाज गोइंग टू राइट देम ऑन पेजेस, कितने पेजेस लगेंगे, 5, 6, 10, 10 पेजेस में भी. बट आई एम डन विद दिस. आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. ये मेरे खुद के एकदम हैंड रिटन है, किसी सोर्स से नहीं है ये. दीज आर नॉट फ्रॉम एनी कोचिंग और एनीथिंग. ये मेरे जितने भी आज तक के एथिक्स के नोट्स थे, हमने उन सबको कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया. राइट. एंड वी वर डन विद दिस. So I hope I was able to show you. Then last में essay, regarding essay, how to make notes of essay. ये मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, ये तो मैं आपको कराऊंगा. So we will not even discuss about it. Everybody knows there are 10,000 people in the essay alchemy program. If you want to join it, you can join it at Understand UPSC का Telegram channel. The link is given in the description, where we will be covering with the entire essay paper. Bit by bit, detail by detail, every note making, everything about the essay paper will be done. Completely. ओके, जॉइन इट इज स्टार्टिंग टुडे ओनली. आइए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए, मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा, मैं आपकी वैल्यूएशंस कराऊंगा, आपको एसेज लिखवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा. यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे सोचना है. सो इसके नोट्स दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज ये तो हम करा ही रहे हैं. सो देर इज़ नो पॉइंट. सो आई होप दिस थिंग इज वॉज क्लियर टू यू. आपको इसमें से कोई भी नोट्स चाहिए अगर, सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल पुट देम ऑन अंडरस्टैंड UPSC का मेन टेलीग्राम चैनल. यू कैन जस्ट सर्च अंडरस्टैंड UPSC ऑन योर टेलीग्राम, और यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और द पिंड कॉमेंट. आप कहीं भी कुछ भी क्लिक करेंगे, यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर चैनल. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दैट आपको कौन से नोट्स चाहिए. आई विल पुट द PDF ऑफ दोज पर्टिकुलर नोट्स ऑन द अंडरस्टैंड UPSC चैनल. The SFG program is already going on. There are close to 30,000 people who are already part of SFG and they are taking benefit out of it. So I would request you to please take your preparation seriously, to please work hard. ये note making कभी भी एक दिन का process नहीं होता. It takes a lot of effort. Start giving that effort. आपका competition बहुत उन लोगों से है जो मेहनत कर रहे हैं. मेहनत करिए. Make yourself proud. Make everybody around you proud. और प्राउड और वो सब बाद में देख लेंगे. मेहनत तो करो, है ना. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू वर्क हार्ड एंड बी सेटिस्फाइड बाय योर हार्ड वर्क. आई होप आई वॉज एबल टू डील विद ऑल योर डाउट रिगार्डिंग टू नोट मेकिंग. Then, as I announced, there will be a video on 21st of October which will deal with
करंट अफेयर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग लाइव नोट मेकिंग. आई विल शो यू कि किस तरीके से नोट्स निकाले जाते हैं करंट अफेयर्स के. एवरीथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एवरीथिंग. डू वॉच इट. इट विल सॉल्व एवरीथिंग करंट अफेयर का डाउट यू हैव, एवरी डाउट दैट यू हैव. सो प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स एंड लेट अस नो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या समझ में आया. व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. वाज आई एबल टू सॉल्व योर डाउट्स. Please let me know what PDFs do you want. I'll put them on the channel. Please interact with us. That's very important for us. If you have liked this video, please drop a comment or more than one comments expressing us your feedback, expressing us your demands, expressing us your learnings. Or if you want to criticize us, please drop a comment. We always appreciate positive criticism, constructive criticism. Hit a like button if you have liked the video. If you have not, that's okay. We'll do better. Let us know that in the comments, and subscribe to the channel if you have not. Please help us grow and reach to more wider people so that we are able to deliver the message of hard work, deliver the message of right guidance to as many people as we can. I hope I was able to help you. Thank you so much. This was Satyam Jain, and this was a comprehensive note making solution for UPSC CSC Mains. Till we meet next time, this is Satyam Jain signing off. Jai Hind, Vande Mataram.